Right, so let me share my screen. Right. Hope you are able to see the screen. Are you able to see the screen? Okay, okay. Great. So what I'll do is I will mm, show the lab manual. I hope that you have that lab manual also. I'll also show the class, ECAD lab class. So if you go to lab work in the experiment 1, this is demo session, today's session, what we are doing now. And if you go to the activity, student activity, you will read this activity. Hmm. So this has been assigned to all 64 students. So here you have to read the appendices A to D, course information. Then reading the experiment 1, understanding that you have to perform that experiment, complete the activities given at the end of the experiment, preparing a lab report. You have to write those things and submitting that as per the time. So due date is February 21. So next week, uh, every week, sorry, every day. Next week, every day, we'll be interacting with one batch, and everybody will tell what he or she has done, whether they faced any difficulty or whatever. So the lab manual of experiment 1 is also there, and full lab manual is also there. Right now you refer to the experiment number 1, and let me show you. Maybe I'll open the full lab manual so that you will understand. Yes, right. So this is the lab manual that we will use. I will be updating the experiments as we progress. So let us go to course information. So here the course information, plan, assessment, everything is given. So click there. You will get all the information about the course, and also institute vision, institute mission, department. So these things you will read. In case there are some issues regarding understanding of these, you will write those in the classroom so that we can clarify the doubts. Regarding course outcomes, we have seen that. So as far as lab course is concerned, there are 4 course outcomes. The first one is that you should be able to use the instruments, not only conventional instruments, but the modern tools such as simulation software and virtual instruments. I think you all are able to use those, but still there should be a higher level of proficiency in using those. Then you should be able to examine the performance of given circuit practically, for which will include assembled circuit. Now we are starting the offline, assembling the circuit will not be a problem. Then performing experiment either in the real lab or through virtual lab, through simulation, doing that experiment, doing correct calculations and properly writing conclusion. So that is the course outcome 2. Course outcome 3 will include the design of various circuits as per given problems, and then you have to prepare the documentation of whatever you observed, all graphs properly written. So these things are to be done by you. Hmm. Then you should be able to explain the circuit operation and the whole process orally. Whenever we will conduct the orals, will you should be able to explain that. So every week there will be a kind of interaction, and you will explain what you did in the last week. Fine. Then go through program outcomes.
COPO mapping, and the execution plan. There may be some minor changes in the lab execution plan, but those things will be informed to you from time to time. So with this information, we'll go to experiment number 1, and you need to read the general lab instructions. There are some general lab instructions, so read those as a part of the regular practice. There are some safety related guidelines too. Then guidelines about the the lab instruments. What is the dual power supply, single voltage power supply, like that, signal generator, multimeter. Then appendix D is about color codes, standard values, and some useful links. So please go through these appendices. In case there are some things missing in the lab manual, please let me know so that I can do some corrections. Right. So let me come to the meet and let me ask whether we are going properly. Are we going fine? Any problem? Okay, great. Fine. So let us come back to the lab manual and let us go to the objective of today's experiment. So there are various objectives. First one is understand the operation and analysis of transistor differential amplifier. Part of the analysis I have given in the lab manual, and part of that you have to study from one website which is given to you in the manual. Then you will you will perform the experiment on your own and verify the formulae experimentally. Some of the things I will show you. You can ask difficulties also, but then you have to perform the experiment on your own. Then design the circuit as per given specifications and verify performance through simulation. Fine. So let us start with the theory. The theory here shows that a differential amplifier is an amplifier that amplifies the difference between two input signals. This is simple to understand. Now this is what is the formula. Let me magnify this. AD is the differential gain and V in minus V in 1 minus V in 2, and VD is the difference between these two. Okay, so that is the gain equation. V output is so here we come to know a term called differential gain. Differential gain means the gain with which the difference between two inputs is amplified. That is the differential gain. Now here there are four configurations shown. Now the triangular block is a amplifier only. It is nothing for nothing to be nothing different, that it is shown as a triangular. It's a kind of uh, amplifier only, with two inputs with plus and minus shown, that is in non-inverting and inverting shown. So it's a differential amplifier. So as you can read here, it's a conceptual representation of differential amplifier in various configurations. I need to change this in various configurations. So first diagram is just a plain diagram, that is two inputs, one output, and both are with respect to ground, and the output is also with respect to ground. So what I mean to say is let me check whether I am able to show that. Yes, good.
Yes. Is the board visible? Okay, great. So this is the amplifier symbol. This indicates non-inverting and inverting terminals. These are the inputs. And even if it is not drawn, I repeat, even if it is not drawn, the inputs are always to be considered with respect to ground. The output is shown here, and even if it is not drawn, this is to be considered with respect to ground. ठीक है, तो ये होगा हमारा V1, ये होगा हमारा V2 और ये होगा हमारा VO. समझ में आ रहा है सब? ओके, ग्रेट. तो फिर यहाँ जाते हैं. दिस इज द अंडरस्टैंडिंग एंड now this diagram shows that the input is given in between two signal is given in between two inputs. So this is called as differential input. इसको क्या बोलते हैं? Differential input. ये वाला A था, ये B वाला डायरेक्टली डिफरेंशियल इनपुट. डिफरेंशियल इनपुट यानी कि सिग्नल हमने कोई भी सिग्नल ले लिया और एम्पलीफायर के दो टर्मिनल्स के बीच में वो कनेक्ट कर दिया. ठीक है, वी आउट. सी में क्या है कि कॉमन मोड इनपुट. वो क्या है कॉमन मोड, वो देखेंगे. तो कॉमन मोड इज लाइक दिस. बोथ द इनपुट्स आर शॉर्टेड and then common signal is given. Now since this is a differential amplifier, when you short both the inputs, it means input 1 and input 2 are equal, the output should be ideally how much? When both the inputs are connected together, how much should be the output? 0. Perfectly right. The output should be 0 and ideally it will be 0. Practically it will not be 0. Practically it will be responding to V2. Why it responds to V2, that we will understand. So the output will not be 0 and that output not being 0, it is output being non-zero is a kind of some practical limitation of the amplifier. How to make this amplifier behave almost ideally even in practical condition, we will understand that also. But what to understand out of this diagram is that this diagram is showing common mode signal. Common mode signal means a signal which is common to both the inputs. ठीक है, और उसके आगे का जो डायग्राम है उसमें क्या है कि डिफरेंशियल और कॉमन मोड सिग्नल दोनों साथ साथ है, कंबाइन. ठीक है, तो इसका एक एग्जाम्पल हमने क्लास में लिया था बट ऐसा बोला नहीं था कि डिफरेंशियल और कॉमन मोड. तो वही डायग्राम मैं फिर से निकालता हूँ. क्लास में जो भी निकाला था ना वो, ये हमारा सिग्नल है. ऑफ कोर्स हाउ यू ड्रॉ इज इमटेरियल बट वी विल ड्रॉ in order to understand the whole thing. So this is a signal generator. We can show it like this. ठीक है, okay. Now these two signals are having opposite polarity, opposite phase. Now what does it mean? It means that when this signal goes up above 0, this signal will go down. मैंने थोड़ा उल्टा निकाला. Just a minute, I'll just do some correction.
या ऐसा निकालना चाहिए सॉरी. So what happens is that when point A goes up, point B goes down, or vice versa. When point A goes down, point B goes up. ठीक है, तो ये हो गया इनपुट सिग्नल. दिस इज एक्चुअली इनपुट सिग्नल, राइट. एंड दीज टू आर एक्चुअली इन फेज. आप देखोगे तो whenever this signal increases, ये भी सिग्नल इंक्रीज होता है. ओके, सो दोनों साथ साथ बढ़ते या साथ साथ कम होते, तो इसलिए इसको बोलते हैं कि कॉमन मोड सिग्नल. राइट, इसको अभी बोला है कि डिफरेंशियल मोड सिग्नल. राइट, नाउ टेल मी to which signal the differential amplifier will respond more. आपकी क्या राय है? Whether it will be amplifying common mode signal or differential mode signal. आपको क्या लगता है? Yes, it will amplify differential mode signal. It means this particular part it will say yes, and this particular part it will say no. Okay, ठीक है. It means it will amplify this and this will reject. It means it will have less gain less than 1. Here gain more than 1, इसलिए उसको हम बोलते हैं कि एम्पलीफायर. रिजेक्ट यानी गेन लेस देन 1. ठीक है, तो इसको बोलते हैं डिफरेंशियल गेन AD, इसको बोलते हैं कॉमन मोड गेन ACM. और दोनों का जो डिवीजन है उसको बोलते हैं CMRR, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो. राइट, नाउ आइडियल वैल्यू यहाँ कितना होगा? आइडियल वैल्यू आप बताइए, CMRR का आइडियल वैल्यू कितना हो सकता है? आइडियल एम्पलीफायर में CMRR का वैल्यू कितना हो सकता है? व्हाट इज योर ओपिनियन? कुछ समझ में आ रहा है या कुछ गड़बड़ हो रहा है? Everybody understood that this is a difference signal, difference amplifier. ये समझ में आ गया कि ये डिफरेंस एम्पलीफायर है, ये डिफरेंस एम्पलीफायर है. यस और नो? एक मिनट, मैं यहाँ अपना चैट चालू करता हूँ इधर. हाँ, चैट इज ऑन, तो आप चैट में भी बोल सकते हैं. हाँ, तो फर्स्ट थिंग इज कि ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर है क्योंकि ये सब्ट्रैक्शन करता है. अगर हम सिग्नल सेम फेज में दे देंगे तो उसका डिफरेंस कितना आएगा? 0 आएगा, है ना. यानी कि ये सिग्नल जो सेम फेज वाला है वो रिजेक्ट होगा. यानी कि उसका गेन लेस देन 1 होगा. आइडियली कितना होना चाहिए? ये 0 होना चाहिए. करेक्ट. हाँ, फिर ऐसा एक सिग्नल है जो दिया तो ये सिग्नल जब ऊपर जाता है तो ये सिग्नल नीचे जाता है. तो यानी कि दोनों साथ साथ ऊपर साथ साथ नीचे नहीं जाते, यानी कि दोनों कॉमन मोड नहीं है.
तो ऐसे सिग्नल जो है ना, तो उनको हम डिफरेंशियल मोड सिग्नल बोलते हैं। ठीक है, तो उनको हम एम्पलीफाई कर सकते हैं बिकॉज दे गेट एडेड एक्चुअली। तो उनका गेन मोर देन 1 होता है। कितना होता है, इट डिपेंड्स ऑन द एम्पलीफायर, और उसको हम बोलते हैं कि डिफरेंशियल गेन। डिफरेंशियल गेन का आइडियल वैल्यू कितना रहेगा? आइडियल एम्पलीफायर में डिफरेंशियल गेन कितना रहेगा? हाँ, ग्रेटर देन 1 तो ठीक है, लेकिन आइडियल यानी कि सबसे अच्छा, यानी कितना होगा वो? कितना लिखा है मैंने इधर? इन्फिनिटी, राइट। और ये 0, ठीक है, यानी कि कॉमन मोड रिजेक्शन का वैल्यू इट विल बी इन्फिनिटी। CMRR का आइडियल वैल्यू इन्फिनिटी होगा। ठीक है, वैसे तो प्रैक्टिकली नहीं होगा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा होगा। इट विल नॉट बी इन्फिनिटी, बट इट विल बी सम इन द 10,000 100,000 वगैरह होगा। ठीक है, राइट। तो हम फिर जाते हैं अपने लैब मैनुअल में। यहाँ देखा CMRR इज AD/ACM। ठीक है, अभी उसका एक ट्रांजिस्टर वाला सर्किट, क्योंकि ट्रांजिस्टर्स तो यूज़ करने पड़ेंगे, तो ये हो गया सिंपल सर्किट। ठीक है, तो ये जो सर्किट है ना, ये सर्किट हम इधर निकालते हैं। ठीक है, इनिशियली आई ड्रॉ सिंपल सर्किट, बाद में ये सर्किट को हम इम्प्रूव करेंगे। RC1, RC2 एंड इसको बोलेंगे RE। ये हमारा होगा Q1, ये हमारा होगा Q2। इतना समझ में आ रहा है सबको? Yes or no? Okay, great. Those who do not want to enable the mic, they can chat also. I have kept this chat on the right hand side so that I can see that and I'll appropriately. If you have difficulty, कुछ समझ में नहीं आया, तो आप उधर आराम से लिख दो कि I did not understand. ठीक है, ओके। अभी इसको पावर सप्लाई लगाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा एम्पलीफायर के लिए? हेलो, चैट विंडो में रिस्पॉन्स दे दो, यस, नो, यस, यू कैन राइट वाई ऑल्सो, है ना, तो टाइम बचेगा सबका। ठीक है, इसको पावर सप्लाई देना पड़ेगा, लेकिन हमको क्या करना है कि इवन इफ द इनपुट इज ज़ीरो, हमारा ऐसा हमको एम्पलीफायर चाहिए, समझो कि ये एम्पलीफायर है हमारा, तो हमको ऐसा एम्पलीफायर चाहिए कि इनपुट ज़ीरो हो तो आउटपुट ज़ीरो होना चाहिए। और इनपुट लो फ्रिक्वेंसी हो तो भी आउटपुट लो फ्रिक्वेंसी वाला होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि वी कैन नॉट यूज़ कैपेसिटिव कपलिंग। जैसे कि एक ट्रांजिस्टर वाला एम्पलीफायर में निकालता हूँ इधर। ये एम्पलीफायर आपने देखा होगा पहले, लास्ट सेमेस्टर में आपने पढ़ा होगा। ये पढ़ा है क्या लास्ट सेमेस्टर में? है ना, ये पढ़ा होगा आपको, बायसिंग वगैरह वगैरह पढ़ा होगा आपने। हाँ, तो इसमें क्या है कि ये वाला जो ट्रांजिस्टर है ना, ये गड़बड़ करता है। ये ट्रांजिस्टर है ना, ये कैसे कैसे निकालूं यहाँ, ये जो ट्रांजिस्टर है ना, ये गड़बड़ करता है। क्या गड़बड़ करता है? इट ब्लॉक्स द डीसी। ये डीसी अलाउ नहीं करता है। तो हमको डीसी अलाउ करना है, क्योंकि हमारे जो सिग्नल रहते हैं ना, जैसे कि टेम्परेचर वाला
या कोई स्ट्रेन गेज वगैरह. सो ऑल दिस सिग्नल्स आर लो चेंजिंग सिग्नल्स, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स. तो वो कांस्टेंट भी रह सकते हैं. अगर स्लो चेंज हो तो भी हमको उसका आउटपुट चाहिए. तो इसलिए कैपेसिटर हमको यहाँ नहीं चाहिए. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ये हमको एक्चुअली नहीं चाहिए. ठीक है, यानी कि ज़ीरो इनपुट दिया तो ज़ीरो आउटपुट आना चाहिए, स्लो मूविंग दिया तो स्लो मूविंग आउटपुट आना चाहिए. इसका सिंपल मीनिंग ऐसा है कि जो कपलिंग है ना, कपलिंग कपलिंग यानी जोड़, ये इनपुट और एम्पलीफायर, आउटपुट और नेक्स्ट प्रोसेसिंग सर्किट. तो इसमें जो कपलिंग है ना, ये कैपेसिटिव वाला नहीं चाहिए. ये कैसा चाहिए? डायरेक्ट चाहिए. ये चाहिए, क्योंकि जो भी इनपुट में वेरिएशन होगा वो हमको आउटपुट में चाहिए. ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? कैपेसिटिव कपलिंग वी हैव स्टडीड, बट उसमें एक दिक्कत है कि अगर इनपुट फास्ट चेंजिंग है तो ही आउटपुट में आएगा, स्लो मूविंग है तो नहीं आएगा वो. तो वो हमको नहीं चाहिए, बिकॉज वी वांट टू प्रोसेस द सिग्नल्स जो लो फ्रिक्वेंसी वाले हो सकते हैं, जैसे कि टेम्परेचर है, स्ट्रेन है, वगैरह वगैरह. ठीक है, तो हमको डायरेक्ट कपलिंग करना है. डायरेक्ट कपलिंग कपलिंग अगर करना है तो यहाँ कैपेसिटर तो लगा नहीं सकते हम. ठीक है, हम लगा नहीं सकते. फिर हमको और एक रिक्वायरमेंट है कि जब इनपुट पॉजिटिव जाएगा तो आउटपुट पॉजिटिव आना चाहिए, या नेगेटिव जो भी है. और जब इनपुट नेगेटिव जाएगा तो आउटपुट नेगेटिव आना चाहिए. यानी कि जो भी वेरिएशन है तो वेरिएशन आउटपुट में भी आना चाहिए. ठीक है, आर यू गेटिंग द आइडिया? जब इनपुट पॉजिटिव हो तो आउटपुट पॉजिटिव, इनपुट नेगेटिव हो तो इनपुट नेगेटिव, ऐसा. यानी कि वेरिएशन आउटपुट में रिफ्लेक्ट होना चाहिए. उल्टा भी हो सकता है, लाइक पॉजिटिव इनपुट हो तो नेगेटिव आउटपुट आ गया, नेगेटिव इनपुट हो तो पॉजिटिव आउटपुट आ गया, इन्वर्शन हो गया, ये अलाउड है. बट जब भी वेरिएशन होगा इनपुट में तो आउटपुट में वेरिएशन हमको चाहिए. ठीक है, तो इसलिए वेन एवर द इनपुट इज ज़ीरो यू शुड गेट सम आउटपुट. तो इसलिए हमको ज़ीरो इनपुट शुड बी अलाउड. सॉरी, ये क्या लिखा मैंने, यानी कि इनपुट हमने ग्राउंड किया बोथ, तो सर्किट का ऑपरेशन चालू रहना चाहिए. इनपुट ग्राउंड किया तो चालू रहना चाहिए. और ये मैं थोड़ा रब आउट करता हूँ इधर, और इसको यहाँ हम अगर सिग्नल लगाएंगे तो भी वो चालू रहना चाहिए. यहाँ का सिग्नल है ना, तो ऊपर नीचे अराउंड ज़ीरो, यहाँ का सिग्नल ऊपर नीचे अराउंड ज़ीरो. एक्चुअली ये उल्टा निकलना चाहिए मुझे, क्योंकि डिफरेंशियल सिग्नल देना है मुझे, ऐसा. तो ये हो गया डिफरेंशियल सिग्नल, यानी कि ये जब पॉजिटिव होता है तब ये निगेटिव होता है. ठीक है, तो ऐसा अगर कॉन्फ़िगरेशन है तब हमारा सर्किट वर्क होना चाहिए, इट शुड वर्क. ठीक है, तो इसलिए क्या ज़रूरी है, वाई आई एम एक्सप्लेनिंग ऑल दिस थिंग्स, बिकॉज इट डिसाइड्स द पावर सप्लाई. कैसे पावर सप्लाई डिसाइड करता है? जैसे कि समझो कि ये इसका सिग्नल का लेवल है अभी ज़ीरो हो गया, समझो इसका सिग्नल का लेवल अभी कितना हो गया? ज़ीरो हो गया. तो ज़ीरो होता है तो उसको हम सिंपली ग्राउंड कर देंगे. ठीक है, अगर हम ग्राउंड कर देंगे और हमको ट्रांजिस्टर का ऑपरेशन चालू चाहिए, इट शुड बी प्रॉपरली वर्किंग, तो बेस करंट जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? अगर इनपुट ज़ीरो है, व्हेन द इनपुट इज ज़ीरो, वेदर द बेस करंट शुड बी देयर और शुड नॉट बी देयर? आपकी क्या राय है? आपको लगता क्या है?
पता नहीं, कुछ कंफ्यूज हो रहे, गड़बड़ हो रहे, क्या हो रहा है? कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, क्या बात है? हाँ, यस। हाँ हाँ, प्लीज़ प्लीज़ शेयर योर। हेलो। हाँ, बोलिए बोलिए। यू जस्ट गो ऑन स्पीकिंग, नो इश्यूज, आस्क डिफिकल्टीज। हाँ हाँ, क्वेश्चन आई वांट रिपीट, ओके ओके। द क्वेश्चन इज, व्हेन द इनपुट्स आर ज़ीरो, जैसे कि ये ज़ीरो किया है मैंने, ये ग्राउंड किया है और ये भी ग्राउंड किया है, ठीक है? तो इस कंडीशन में बेस करंट जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? ट्रांजिस्टर का ऑपरेशन हमको सही चाहिए, वी वांट ट्रांजिस्टर टू वर्क इन एक्टिव रीजन। अगर एक्टिव रीजन में नहीं काम करता है वो, तो एम्पलीफायर में काम, एम्पलीफायर जैसा काम नहीं करेगा, ठीक है? सो वी वांट Q1 एंड Q2 टू बी इन एक्टिव रीजन। एक्टिव रीजन पता है ना सबको? एक्टिव रीजन, सैचुरेशन रीजन, कट ऑफ रीजन, थोड़ा थोड़ा याद है ना? यस और नो? कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, क्या बात है आज? वहाँ चैट में आप वाई लिखो ना, है ना? तो जल्दी जल्दी सब लोगों का मिल जाएगा मुझे रिस्पॉन्स। हाँ, चैट में सिर्फ वाई लिख दो बस, बाकी कुछ नहीं। तो इसका मतलब है कि हमको एक्टिव रीजन में रखने हैं। वी हैव टू कीप Q1 एंड Q2 इन एक्टिव रीजन। एक्टिव रीजन में चाहिए, इसका मतलब क्या है कि इवन इफ द इनपुट इज जीरो, देयर शुड बी सम क्वाइसेंट बेस करंट जाना चाहिए, ठीक है? और इनपुट तो कितना है अभी? हाउ मच इज द इनपुट? अभी लिख दो उधर, इनपुट कितना वोल्टेज है? अरे टाइप करने में इतना टाइम जाता है? 0 वोल्ट, करेक्ट। तो इनपुट अगर ज़ीरो है और मैंने यहाँ ज़ीरो लगाया, यहाँ 0 वोल्ट लगाया, तो बेस करंट जाएगा क्या? यहाँ भी ज़ीरो है और यहाँ भी ज़ीरो है, तो बेस करंट जाएगा क्या? यस और नो? आर ई का लोअर पॉइंट, हाँ नहीं जाएगा, है ना? सब लोग बता रहे हैं कि नहीं जाएगा। तो जाना चाहिए, इसलिए इसको हमको पॉजिटिव रखना चाहिए या निगेटिव रखना चाहिए या ज़ीरो रखना चाहिए? क्या आपका राय है? पॉजिटिव वोल्टेज चाहिए, निगेटिव चाहिए या ज़ीरो चाहिए? कौन सा चाहिए? ए, बी, सी, इसमें से कौन सा तो चूज़ करो आप। बी, परफेक्ट। सो ये हमको चाहिए, यानी कि इधर हमको माइनस वोल्टेज लगाना चाहिए। हाँ, समझो -12 वोल्ट। मैंने 12 वोल्ट क्यों ले लिया अभी, उसका कोई आंसर अभी नहीं है, ठीक है? मैंने ऐसे ले लिया, 10 भी ले सकता हूँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं। 12 वोल्ट का बैटरी होता है इसलिए ले लिया, ठीक है? तो -12 वोल्ट इधर लगाना ज़रूरी है, ठीक है? उसके बाद यहाँ ऊपर से, यहाँ ऊपर से जब ये बेस करंट जाएगा, तो यहाँ से कलेक्टर करंट जाना चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए, जाना चाहिए। तो ये पॉजिटिव बैटरी से आएगा, तो यहाँ हमको +12 देना चाहिए। तो कितने बैटरीज हो गए? +12 और -12, ठीक है? तो ये कैसे +12 -12 कैसे तैयार करेंगे हम? तो इसलिए क्या करेंगे, फॉर दैट वी विल यूज़ टू बैटरीज। ये एक बैटरी ले लिया, ये और एक बैटरी ले लिया, दोनों सीरीज में जोड़ दिए, सेंटर पॉइंट को ग्राउंड किया, और जब हम करेंगे ऐसा तो इधर का वोल्टेज +12 आ जाएगा, इधर का ऑटोमेटिकली -12 आ जाएगा। ये सबको समझ में आ रहा है क्या? यस और नो? तो +-12 सप्लाई अगर तैयार नहीं है हमारे पास, तो हम क्या कर सकते हैं? वी कैन टेक टू बैटरीज, connect them as shown in the figure, and then treat the center point as the zero voltage, that is ground, and then the
upper terminal like A becomes positive, B becomes negative, and C becomes 0. Did you understand this much? Okay. So same thing I have shown in this figure. I will start the protest now. ओके तो ये हो गया हमारा सिंपल सर्किट. ठीक है. Now the same circuit I will draw here. और ये हमको यहाँ कनेक्ट करना पड़ेगा. समझ में आ रहा है क्या ये सब? ठीक है. ये ऐसा कनेक्शन होगा. बैटरी ऐसी कनेक्ट होंगी और एम्पलीफायर ऐसा कनेक्ट होगा. राइट. सपोज यू कनेक्ट कॉमन मोड सिग्नल. अगर हम कॉमन मोड सिग्नल लगाते हैं, यानी कि जब ये सिग्नल अप होता है, ये भी सिग्नल अप होता है, दोनों साथ साथ ऊपर जाते हैं, साथ साथ नीचे आते हैं. डिड यू अंडरस्टैंड दिस? उसको हम कॉमन मोड सिग्नल बोलते हैं. यस और नो? ओके. ठीक है. सो दिस इज अवर कॉमन मोड सिग्नल. अगर बोथ द बेसिस, इफ बोथ द बेस सिग्नल्स go up, what will happen to emitter signal? जब both bases, both the base, both the base terminals go up, ये भी up जाएगा, ये भी up, तो emitter का इधर क्या होगा? ये up जाएगा या down जाएगा या वैसे का वैसे रहेगा? U, D and same. कौन सा आपका आंसर है? Both the inputs, both the base signals are going up with the same amplitude. तो एमिटर का लेवल ज़्यादा होगा, कम होगा या सेम रहेगा? आपको क्या लगता है? हेलो, यू कैन टाइप SUD. यू. ओके. सो U इज करेक्ट. इट विल गो अप. जितना ये समझो कि ये 1 वोल्ट से ऊपर गया, तो ये भी 1 वोल्ट से ऊपर जाएगा. ठीक है. आर यू गेटिंग दिस? सो व्हेन दिस गोज अप, ये इसका इधर का जो करंट है ना, IE, ये भी थोड़ा सा बढ़ेगा और इस इधर का वोल्टेज थोड़ा सा कम होगा, बट दोनों साथ साथ कम होंगे. सो दिस विल, ये जो है ना, ये वोल्टेज और ये वोल्टेज, बोथ द वोल्टेज विल गो डाउन, यानी कि डिफरेंस उसका कम होगा. वेरिएशन तो कम होगा. वेरिएशन कितना कम होता है हम प्रैक्टिकली देखेंगे. ठीक है. अब हम केस लेते हैं डिफरेंशियल सिग्नल. डिफरेंशियल सिग्नल यानी एक सिग्नल ऊपर जाता है, दूसरा सिग्नल नीचे जाता है. तो इससे क्या होगा कि व्हेनेवर द बेस सिग्नल इज गोइंग अप, यहाँ ज़्यादा होता है, तो ये करंट, दिस करंट विल गो अप. नाउ दिस सिग्नल इज गोइंग डाउन, सो इसका करंट थोड़ा कम होगा, और दोनों मिला के ये करंट कांस्टेंट रहेगा, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि एक बेस वोल्टेज कम हो रहा है, एक बेस वोल्टेज ज़्यादा हो रहा है. ठीक है. तो इससे क्या होगा कि ये करंट, ये जो करंट जा रहा है ना इधर ऐसा, तो ये ज़्यादा होगा और ये जो करंट है वो कम होगा. ठीक है. ये करंट ज़्यादा होता है तो ड्रॉप ज़्यादा होगा, यानी कि ये ड्रॉप ज़्यादा होगा, यानी कि इसका इधर का वोल्टेज ड्रॉप होगा, इधर का वोल्टेज अप जाएगा.
तो ये होता रहेगा वेन एवर द इनपुट्स गो ऑन चेंजिंग। ठीक है, तो इसको एक करके देखते हैं थोड़ा सा। विल गो टू द सिमुलेटर। तो अभी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, तो मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ। what I'll do is change the view। right, so I change the view just to make sure that I am able to see your chat window while I'm doing something here। तो मैं क्या करता हूँ कि ये सब हटाता हूँ, so जिससे आपको पता चले कि सर्किट वही है। ठीक है, अभी थोड़ा सिंपल लग रहा है सर्किट, दिखाई देता है कि नहीं देखा है? इज दिस सर्किट प्रॉपरली विजिबल? ये बैटरी वगैरह दिखाई देती है, बैटरी 1 12 वोल्ट, बैटरी 2 12 वोल्ट की, सेंटर टैप ग्राउंडेड। ओके फाइन, ये सर्किट आप भी निकाल सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, इधर ये ऑसिलोस्कोप का आउटपुट है ना, इनपुट है ना, ये यहाँ जोड़ता हूँ। ठीक है, और बी कहाँ जोड़ूँ? इनपुट को या ए इनपुट को जोड़ता हूँ? ए जो ना, ये इनपुट को जोड़ता हूँ। तो इनपुट हम ऑब्जर्व कर पाएंगे, ये हो गया इनपुट को कनेक्ट, और बी हो गया, यहाँ भी कनेक्ट कर सकता हूँ मैं Q2 के कलेक्टर पे, यहाँ भी कनेक्ट कर सकता हूँ Q1 के कलेक्टर में। ठीक है, अभी इनपुट कितना दिया मैं देखता हूँ। इनपुट कितना दिया? 3000 मिली वोल्ट, यानी कि 3 वोल्ट्स, फ्रीक्वेंसी 1 किलोहर्ट्ज। ये कितना है दूसरा वाला? वो भी 3000 है, 3 वोल्ट है, 1 किलोहर्ट्ज। ठीक है, तो इसका मतलब ये कॉमन मोड है क्या डिफरेंशियल मोड है, आप बताइए। सेम वोल्टेज है, फेज भी सेम है, तो कॉमन मोड, कॉमन सिग्नल है या नई सिग्नल है? कॉमन सिग्नल, इट्स अ कॉमन सिग्नल। इवन दो, आई रिपीट, इवन दो इट इज कमिंग फ्रॉम 2 सिग्नल सोर्सेस, V1 और V2, दो अलग अलग सोर्सेस लगाए हैं, तो भी उनका एम्पलीट्यूड सेम है और फेज भी सेम है। अगर फेज हमको उल्टा करना है, अगर फेज हमको उल्टा करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको ये उल्टा कनेक्ट करना पड़ेगा, ये ऐसे कनेक्ट करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा कनेक्ट? ऐसे करना, कनेक्ट। अरे ये गड़बड़ हो गई थोड़ी सी। ठीक है, जस्ट अ मिनट। हाँ, ये ऐसे कनेक्ट करना पड़ेगा, तो ये हो गया फेज उसका उल्टा। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? अगर उल्टा करना है, 180 डिग्रीज करना है, तो ऐसा कर सकते हैं। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? अब ये सिग्नल डिफरेंशियल हो गया, क्योंकि जब ये ऊपर जाता है तो ये नीचे जाता है। क्यों? क्योंकि वो उल्टा लगा है, रिवर्स पोलैरिटी में लगा है। ठीक है, अगर आपको देखना ही है तो हम पहले वो इनपुट देखते, पहले इनपुट देखते हैं, ए चैनल को V1, बी चैनल को V2, और वो सिमुलेट करके देखते। ठीक है, येलो वाला इधर और ब्लू वाला दोनों एक साथ डबल क्लिक करते हैं इधर। तो आर यू एबल टू ऑब्जर्व दैट बोथ आर आउट ऑफ फेज एंड सेम एम्पलीट्यूड? आपको दिखाई दे रहा है क्या? दे आर आउट ऑफ फेज और एम्पलीट्यूड सेम है, यानी कि वो डिफरेंशियल सिग्नल है या कॉमन मोड सिग्नल है? ये डिफरेंशियल सिग्नल है, कॉमन मोड सिग्नल है? डी और सी डिफरेंशियल सिग्नल, परफेक्ट परफेक्ट, इट्स अ डिफरेंशियल सिग्नल।
ठीक है, अभी हम उसको कॉमन मोड करेंगे, देखते हैं क्या होता है। ये कनेक्शन हम हटाएंगे और यहाँ से ऐसा करेंगे और यहाँ से ये कनेक्ट करेंगे, तो ये हो गया हमारा कॉमन मोड सिग्नल। तो आप देखो दोनों सिग्नल्स एक साथ साथ है, दिखाई नहीं दे रहे, तो ये मैं उसका थोड़ा सा ऊपर करता हूँ जस्ट टू अंडरस्टैंड कि दोनों एक साथ है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो ये कॉमन मोड सिग्नल है, डिफरेंशियल है, कौन सा है ये, विच इज़ दिस? ये हो गया कॉमन मोड सिग्नल। तो आपको ये समझ में आ गया कि कॉमन मोड सिग्नल कैसे तैयार करना है, डिफरेंशियल मोड सिग्नल कैसे तैयार करना है। ठीक है, तो पहले कॉमन मोड सिग्नल करके ट्राई करते हैं, फिर हमको आउटपुट सिग्नल ऑब्जर्व करना है। तो ये हो गया आउटपुट सिग्नल। तो हम देखेंगे आउटपुट सिग्नल आता है कि नहीं आता है। ठीक है, आउटपुट सिग्नल का कलर कौन सा था, कलर रेड वाला था। ठीक है, रेड वाला। तो रेड वाले का स्केल कितना है, सबका स्केल हम 1 वोल्ट पे रखते हैं। ठीक है, तो रेड वाला सिग्नल कम है या ज़्यादा है, इज इट स्मॉलर और लार्जर? ट्राई टू अंडरस्टैंड। इनका जो स्केल है ना 1 वोल्ट पे, ये भी 1 वोल्ट पे और ये भी 1 वोल्ट पे, सब 1 वोल्ट पे, इसका कोई मतलब नहीं, फिर भी ये भी 1 वोल्ट पे रखते। ठीक है, तो रेड वाला है आउटपुट, ब्लू वाला और येलो वाला साथ साथ में है कॉमन मोड सिग्नल। हाँ, तो आउटपुट कम है या ज़्यादा है, आपको क्या लगता है? आउटपुट इज रिड्यूस्ड और आउटपुट इज इंक्रीज्ड, आर या आई? आउटपुट छोटा हो गया है, आउटपुट बड़ा हो गया? ब्लू वाला इनपुट है, हाँ, आउटपुट इज रिड्यूस्ड। ठीक है, यानी कि कॉमन मोड सिग्नल वो कम कर रहा है, एक्चुअली वो ज़ीरो करना चाहिए। ज़ीरो करने के लिए क्या करना चाहिए, सर्किट में थोड़ा सा चेंजेस चाहिए, वो करेंगे हम। ठीक है, हाँ, तो कॉमन मोड सिग्नल रिजेक्ट हो रहा है, गेन लेस देन 1 है। ठीक है, आउटपुट कम है इनपुट से, यानी कि गेन इज लेस देन 1, इतना तो हम समझ पाए। अभी हम क्या करते हैं कि डिफरेंशियल सिग्नल लगाते हैं। डिफरेंशियल सिग्नल लगाने के लिए एक सिग्नल हमको उल्टा करना पड़ेगा, तो उल्टा करने के लिए हम ये वायर्स उल्टा कनेक्ट करते हैं। राइट, तो अभी आपको पता चलेगा कि रेड वाला आउटपुट था, तो रेड वाला गड़बड़ कर रहा है कुछ। तो ऐसा क्यों कर रहा है, बिकॉज द इनपुट इज टू मच लार्ज सो दैट आउटपुट इज गोइंग टू सैचुरेशन, ऐसा गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, तो आउटपुट सैचुरेशन में जा रहा है, तो ऐसा ना हो इसलिए हमको इनपुट कम करना पड़ेगा। तो इनपुट हम कम करेंगे, कितना करेंगे, 10 मिलीवोल्ट या 50 मिलीवोल्ट करते। मैं इसको 50 मिलीवोल्ट कर रहा हूँ, दोनों को 50 मिलीवोल्ट मुझे करना चाहिए। तो मैं इसको 50 मिलीवोल्ट करता हूँ। मैं जूम नहीं कर पा रहा हूँ एक्चुअली थोड़ा सा, बट इट्स ओके। इज इट विजिबल एटलीस्ट टू सम एक्सटेंट, कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है? मैं इसको विजिबल यहाँ से कर सकता हूँ, शो ऑल, शो ऑल। ओके, तो यहाँ हमको वो छोटा दिख रहा है। वी कैन गो टू टेम्पलेट, टेक्स्ट स्टाइल्स और कंपोनेंट का वैल्यू क्या लिखना चाहिए उधर, प्रॉपर्टीज़, प्रॉपर्टीज़ का फॉन्ट बड़ा चाहिए, क्लोथ्स। तो ये प्रॉपर्टीज़ आपको बड़े दिख रहे, 50 मिलीवोल्ट और 1K। ठीक है, तो इसको भी हम शो ऑल, शो ऑल, इसका भी 50 मिलीवोल्ट 1K। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि आउटपुट क्या आता है। तो इनपुट छोटा है इसलिए हमको वोल्ट्स पर डिवीज़न चेंज करना पड़ेगा। और सेकंड इनपुट कौन से कलर का है, ब्लू कलर का, तो ब्लू कलर का भी सेटिंग चेंज करना पड़ेगा। ये हो गया ब्लू कलर।
नाउ येलो एंड ब्लू दे आर डिफरेंशियल, इसलिए वो अपोजिट फेज में आपको दिखाई दे रहे हैं। और फिर ये आउटपुट कौन सा है? रेड वाला, रेड वाला आउटपुट है ना? हाँ यस, रेड वाला आउटपुट है। तो रेड वाले का कहाँ गया? रेड वाले का, हाँ। तो हमको इजीली समझ में आए इसलिए हम क्या करते कि सबका वोल्ट्स पर डिवीजन सेम रखते, 20 मिली वोल्ट, 20 मिली वोल्ट एंड 20 मिली वोल्ट। ये सब एक जैसा है, ग्रीन वाले का कोई अभी संबंध है नहीं, ठीक है। तो आउटपुट कम है या ज़्यादा है? आपको क्या लगता है, क्या दिखाई दे रहा है? आउटपुट ज़्यादा है कम है? इज इट मोर और लेस? हेलो, आउटपुट इज मोर। तो ये सही ढंग से दिखाई दे इसलिए थोड़ा सा मैं इसको कम करता हूँ, वोल्ट्स पर डिवीजन एडजस्ट करता हूँ। तो आउटपुट इज मोर, ठीक है, यानी कि ये एम्पलीफाई कर रहा है, यानी कि डिफरेंशियल मोड सिग्नल का गेन ज़्यादा है, कॉमन मोड सिग्नल का गेन कम है। आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है क्या? ये डिफरेंस एम्पलीफाई कर रहा है, कॉमन मोड सिग्नल रिजेक्ट कर रहा है। ये आप करके देखिए, सेम सर्किट, यू असेंबल दिस सर्किट इन प्रोटियस, और आप ऐसा करो कि दोनों को इनपुट सिग्नल सेम दे दो, तो आउटपुट आपको इनपुट से कम दिखाई देगा। और जब हम इनपुट ऐसा देंगे कि उल्टा है, अपोजिट फेज में है, सेम एम्पलीट्यूड अपोजिट फेज में है, तो आउटपुट हमको ज़्यादा मिलेगा। इट मीन्स दिस सर्किट रिस्पॉन्ड्स टू द डिफरेंस ऑफ द इनपुट, ठीक है, राइट। तो ये हो गया हमारा ये हो गया हमारा बेसिक ऑपरेशन, ठीक है। तो इसमें और एक काम करते हैं कि डीसी एनालिसिस भी करके देखते हैं इधर, डीसी एनालिसिस करके देखते हैं इसका। एक्चुअली अपने लैब मैनुअल में डीसी एनालिसिस पहले है, डीसी एनालिसिस, ठीक है। ये एनालिसिस आप घर में थोड़ा सा डिराइव करके, यू जस्ट डिराइव दिस, आप डिराइव कर पाओगे? दिस इज बेस्ड ऑन ओम्स लॉ ओनली। यस, यस और नो, इसमें कोई दिक्कत आएगी क्या ये डेरिवेशन करने में? विल देयर बी डिफिकल्टी, या करके दिखाना पड़ेगा डीसी एनालिसिस आपको? ठीक है, आप ट्राई तो करो, ठीक है। तो हम डायरेक्टली सिमुलेशन करके देखते हैं क्या है, कैसा है। तो उसके लिए हमको क्वाइसेंट कंडीशन चाहिए, यानी कि इनपुट ज़ीरो चाहिए। तो हम क्या करते हैं, ये सिग्नल हटाते हैं दोनों। वैसे उसका वैल्यू ज़ीरो भी कर सकते थे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बट सिग्नल हटाया तो समझ में थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो इनपुट इज़ ग्राउंडेड, इनपुट इज़ ग्राउंडेड, ये दिखाई दे रहा है आपको? इनपुट ग्राउंड किया, यस और नो? बोथ द इनपुट्स आर ग्राउंडेड, दिखाई दे रहा है क्या? हाँ। अभी हम वोल्ट मीटर लगाएंगे इधर। कहाँ गया वोल्ट मीटर? डीसी वोल्ट मीटर, डीसी वोल्ट मीटर। इसका एक टर्मिनल हम करेंगे ग्राउंड, और दूसरा टर्मिनल कहाँ लगाएंगे? इनपुट को लगाया तो वो ज़ीरो ऐसे ही दिखाएगा। एमीटर को लगा के देखते हैं। ऑसिलोस्कोप की कोई ज़रूरत है नहीं अभी। तो ये ऐसा करता हूँ मैं थोड़ा सा, ये कितना दिखाई दे रहा है? -0.65, -0.65। क्यों? बिकॉज देर इज़ अ बेस एमीटर ड्रॉप। हमारा बेस कितने वोल्टेज पे है अभी? बेस कितने वोल्टेज पे? ज़ीरो, बिकॉज इट इज़ ग्राउंडेड, ज़ीरो है। और एमीटर -0.65। यूजुअली वी टेक इट एज ए 0.7, बट प्रैक्टिकल सर्किट में एग्जैक्टली 0.7 नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं होता है वो भी जानते हैं अभी क्विकली।
समझो कि ये ट्रांजिस्टर है, ये हमारा ट्रांजिस्टर है, बेस वोल्टेज ग्राउंड किया है और एमिटर में कुछ तो सर्किट है ऐसा, और इधर -12 वोल्ट दिया है। तो करंट तो ऐसा जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बट ये जो ड्रॉप है ना, कौन सा ड्रॉप, ये बेस एमिटर वाला ड्रॉप, ये नॉर्मली 0.7 होगा। नॉर्मली हम 0.7 पकड़ेंगे उसको, बट एक्चुअली वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। वाई इट विल बी डिफरेंट? बिकॉज बेस एमिटर वोल्टेज is a kind of a diode. Base emitter is a junction diode. Yes or no? बेस एमिटर ये जंक्शन है कि नहीं है? हेलो, हाँ जंक्शन तो है। तो जंक्शन है तो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, वो डायोड जैसा ही होगा, डायोड जैसा होगा, यानी कि VD एंड ID। और डायोड कैरेक्टरिस्टिक तो ऐसा होता है, ऐसा होता है ना। तो जब हम ID चेंज करेंगे, ID अलग होगा, समझो ID इतना है तो VD इतना होगा, ID बढ़ गया तो VD बढ़ेगा, ID और बढ़ेगा तो VD और बढ़ेगा, लाइक दैट। सो VD यानी कि डायोड का ड्रॉप इज प्रोपोर्शनल टू ID, डिपेंड्स ऑन ID। यस और नो? आपको समझ में आ रहा है क्या? अगर आपको इंटरव्यू में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि डायोड का ड्रॉप कितना होता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? Somebody will enable the mic and answer. आप कोई भी एक स्टूडेंट माइक एनेबल करो और बताओ क्या आंसर दोगे आप। इफ somebody asks you कि डायोड का ड्रॉप कितना होता है, तो क्या बताओगे आप? हेलो, क्लासरूम में लेना चाहिए था क्या आज का सेशन? मुझे लग रहा है हाँ, 0.7 वोल्ट इज कॉमन आंसर, एवरीबडी गिव्स, ठीक है। 0.7 ये आंसर है ना, सब लोग देते, बिकॉज दिस इज एज्यूम्ड। लेकिन अगर हम ऐसा समझो कि एक डायोड है, ये डायोड है कि नहीं? वॉट एवर आई हैव ड्रॉन, इज इट अ डायोड? यस। तो डायोड का करंट कंट्रोल करने के लिए वहाँ एक रजिस्टर लगाते, और फिर यहाँ समझो सप्लाई दिया 5 वोल्ट और ये ग्राउंड किया, तो ये ऐसे करंट जाएगा ना, जाएगा कि नहीं जाएगा करंट? यस और नो? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, तो जल्दी जल्दी हम आगे जा सकते हैं। हाँ, अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू 1K है और समझो करंट जाता है 1 मिली एम्पियर, समझो 1 मिली एम्पियर जाता है, तो यहाँ 1 मिली एम्पियर हम ऐसा पकड़ेंगे, और इधर का वोल्टेज है कि समझो 0.68 है, और अगर ये 1K का हमने 800 मिली वोल्ट, सॉरी 800 मिली ओम, 800 ओम कर दिया, तो ये दिस विल बिकम 1.2 अराउंड, एक से ज़्यादा होगा, तो ये करंट होगा इधर, समझो कि 1.2, और डायोड का जो वोल्टेज है ना वो थोड़ा सा बढ़ेगा, जैसे कि 0.69, यानी कि डायोड का वोल्टेज डायोड के करंट पे डिपेंडेंट है। ये आपका आंसर होना चाहिए। आपका आंसर क्या होना चाहिए, पता चल गया थोड़ा थोड़ा? हाँ, आपका आंसर ऐसा होना चाहिए, योर आंसर शुड बी दैट द डायोड वोल्टेज डिपेंड्स ऑन द डायोड करंट, ठीक है, एंड बोथ आर रिलेटेड with the relation shown in the diode characteristics.
डायोड के कैरेक्टरिस्टिक्स में जो भी ग्राफ है ना, उसके मुताबिक जो करंट है उसके मुताबिक वोल्टेज होगा। 0.7 होगा नहीं। 0.7 हम पकड़ दे, क्योंकि हर बार हम ग्राफ लेके बैठ नहीं सकते, and sometimes we would like to approximate the things. That's why we take near about value and go ahead. समझ में आ रहा है क्या? ओके, ग्रेट। तो अब मैं आपको पूछूं कि बेस एमिटर जंक्शन के अक्रॉस कितना वोल्टेज होता है, तो आपका आंसर क्या होगा? 0.7 होगा आंसर आपका? यस और नो? जब मैं पूछूं, अगर मैं पूछूं कि बेस एमिटर जंक्शन के अक्रॉस कितना वोल्टेज होता है, तो आपका आंसर नहीं होगा 0.7। आप बोलोगे कि इट डिपेंड्स ऑन द करंट, है ना? इट डिपेंड्स ऑन द करंट, ठीक है ना? तो अगर हम सिमुलेशन में जाएंगे तो ये हमको पता चल रहा है कि 0.7 नहीं है, ये ज़ीरो है, इधर का ज़ीरो है, और ये -0.7 होना चाहिए, बट ये 0.65 है, -0.65 है, क्योंकि करंट ऐसा है। अगर करंट अलग है तो ये वैल्यू अलग होगा, ठीक है? वो भी करके देखते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। अगर समझो कि ये 10K के बजाय मैंने 5K कर दिया ना इधर, 5K, तो आपको ये पता चल जाएगा। देखो ये 65 बजाय 67 हो गया, यस और नो? हाँ, तो 0.7 कभी होता नहीं, वो कभी हो सकता है, बट नॉर्मली हम पकड़ते 0.7 जस्ट फॉर पेपर वर्क, बट एक्चुअल रियल लाइफ में क्या होता है, वो कितना भी हो सकता है इन दैट रेंज। और वो एग्जैक्टली कितना होगा वो डिपेंड करता है इस पे, डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स पे, ठीक है? पक्का ध्यान में रहेगा, आपके दिमाग में रहेगा ये सब? यस और नो? फैंटास्टिक, वेरी गुड। तो हम अभी क्या कर रहे हैं कि डीसी एनालिसिस कर रहे हैं, तो इसलिए हमने जीरो इनपुट दिया और एमिटर का वोल्टेज देखा। अभी हम क्या करते हैं कि मैं आई रिस्टोर दिस। अभी मैं क्या करता हूँ, ये रिस्टोर करता हूँ 10K 10K 10K, ठीक है? और फिर क्या करता हूँ, I will simply slightly change the design colors. Paper color. पेपर कलर वाइट हो गया, और ग्रिड का कलर मुझे बहुत छोटा वाला चाहिए, ठीक है? अभी थोड़ा सा विजिबल है ना प्रॉपरली? इट्स बेटर देन अर्लियर। थोड़ा सा बढ़ाता हूँ मैं, हाँ ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, और एक वोल्ट मीटर ले लेंगे और कलेक्टर का वोल्टेज मॉनिटर करेंगे। कलेक्टर कलेक्टर कलेक्टर, ये हो गया कलेक्टर, और इसका लोअर वोल्टेज कहाँ जाना, लोअर टर्मिनल ग्राउंड पे जाना चाहिए, ठीक है? तो हम क्या करते हैं कि इसका गेसिंग करते हैं कितना होगा, क्या करते हैं उसको गेसिंग करते हैं, और हमारा गेस सही होता है नहीं होता है ये हम देखेंगे, ठीक है? इसलिए मैं इसको जूम करता हूँ जिससे आपको ये दिखाई दे, और थोड़ी देर के लिए मैं ऑसिलोस्कोप ये हटाता हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा सही ढंग से। ये थोड़ा सा इधर हटाता हूँ, हाँ ये अभी थोड़ा सा रीडेबल है, ठीक है? इज दिस ओके नाउ? थोड़ा लेस कॉम्प्लेक्स लग रहा है सर्किट? हाँ ठीक है। अभी मैं जो जो क्वेश्चन पूछता ना उसके आंसर्स आप देते जाइए। सप्लाई वोल्टेज कितना है हमारा, प्लस माइनस प्लस माइनस कितना है, दिखाऊं आपको? प्लस माइनस कितना है, 12 वोल्ट, ठीक है? ये तो हो गया, ठीक है। अभी इनपुट कितना है,
बेस वोल्टेज कितना है बताइए, व्हाट इज द बेस वोल्टेज? बेस वोल्टेज कितना है? 0 वोल्ट, परफेक्ट। एमिटर वोल्टेज कितना है? एमिटर वोल्टेज, बेस वोल्टेज अगर 0 है तो एमिटर, एमिटर 0 नहीं होगा ना, लेस। अगर यहाँ 0 है तो ये 0.7 से नीचे जाएगा ना, ये नॉर्मली 0.7, 0.65, 0.67 कुछ किसी अमाउंट से तो नीचे जाएगा ये, यानी कि -0.65, -0.67, -0.7 ऐसा तो कुछ तो होगा। जब पता नहीं रहता तो हम -0.7 बताएंगे, और एग्जैक्टली क्या है बोलने के लिए बोला तो कैरेक्टरिस्टिक्स देखना पड़ेगा, ऐसा बोलेंगे। ठीक है, तो व्हाट विल बी द एमिटर वोल्टेज? इट विल बी -0.7 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है क्या? यस और नो? यस। ठीक है, तो यहाँ एमिटर का वोल्टेज है ना, एमिटर का वोल्टेज ये भी ऑलमोस्ट इससे थोड़ा सा कम होगा, इससे थोड़ा सा कम होगा। जैसे कि कितना कम होगा अभी पता नहीं चलेगा, बट थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशंस करते हैं अभी, वेरी रफ। ठीक है, तो हम सोचते हैं कि ये ज़ीरो है, ये ज़ीरो है, ये -0.7 है, और ये -0.1 होगा अप्रोक्सीमेटली, -1 होगा। -1 और -12 यानी कि ड्रॉप कितने वोल्टेज का है? -1 एंड -12, ड्रॉप कितने का हो गया है ये? -1 एंड -12, कितने का ड्रॉप हो गया 10K के अक्रॉस? टाइम बहुत लेते हैं भाई आप, सब्ट्रैक्शन के लिए इतना टाइम। -13 कैसे हो गया? माइनस, ये -1 है और -12 है, हाँ 11 वोल्ट का डिफरेंस है। 11 वोल्ट का डिफरेंस है, 11 वोल्ट्स और 10K, 11 डिवाइडेड बाय 10K यानी कि 1.1 मिली एम्पियर करंट जाएगा, 1.1 मिली एम्पियर जाएगा ना, 1.1 मिली एम्पियर। और यहाँ दो ब्रांचेस है, देर आर 2 ब्रांचेस, तो हर एक ब्रांच में कितना जाएगा? 1.1 डिवाइडेड बाय 2, है कि नहीं? 1.1 डिवाइडेड बाय 2 यानी 0.55। ये सही कर रहे हैं ना हम? क्या कुछ गड़बड़ कर रहे हैं? देखो कहाँ से चालू किया, इनपुट ग्राउंडेड है तो यहाँ 0 होगा, ये 0.7 होगा माइनस, क्योंकि ये ग्राउंड के नीचे है। इधर का वोल्टेज ड्रॉप हमको पता नहीं क्योंकि करंट पता नहीं, इसलिए हमने अप्रोक्सीमेटली 0.3 पकड़ा और ये -1 पकड़ा। -1 और -12 ये हो गया 11 वोल्ट, 11 वोल्ट डिवाइड बाय 10K 1.1, ये 1.1 इधर और इधर डिवाइड होगा, इसलिए हर एक का करंट 0.55 होगा। ठीक है, इतना इतना समझ में आ रहा है? तो यहाँ करंट जाएगा 0.55 इधर, 0.55 इंटू 10K, 0.55 इंटू 10K, 10,000 करना चाहिए, तो 5.5 वोल्ट्स। और यहाँ होगा 12 वोल्ट, 12 माइनस 5.5, 12 माइनस 5.5, तो 6.5 वोल्टेज आना चाहिए। ठीक है, आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया ये कैलकुलेशंस? ये तो सिर्फ ओम्स लॉ है और डिवीजन मल्टीप्लिकेशन इतना ही है, प्लस माइनस उतना ही है। तो हम अभी रन करते हैं, अभी देखो कितना आ गया। हमारा कैलकुलेशन था 6.5 और ये दिखा रहा है 6.62, विच इज़ वेरी क्लोज। आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है क्या? हाँ, so this is how you should actually do the calculations, and this will help you, this type of thinking will help you in gate examination where the time is less। ठीक है, तो जल्दी से कैलकुलेशन हमको करना पड़ता है, सो दिस वे यू कैन डू दी कैलकुलेशंस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डीसी एनालिसिस हो गया। अब बताइए कि एक
ट्रांजिस्टर का कलेक्टर 6.62 है, तो दूसरा ट्रांजिस्टर का कलेक्टर कितना होगा? सेम होगा या अलग होगा? सेम होगा, देखो, बिकॉज द सर्किट इज बैलेंस्ड, दोनों साइड्स उसके सेम है। ठीक है, आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो ये सर्किट जो है ना, उसका आप डीसी एनालिसिस करो, जो भी इसमें लिखा है ना, ये डीसी एनालिसिस करके दिखा है, देखो। मैंने जो सर्किट लिया है ना, उधर ये आर ई, ये वाला रजिस्टर हमने लगाया है। वी वांट टू मेक इट प्रैक्टिकल। अगर वो नहीं है तो प्रैक्टिकली थोड़ा सा गड़बड़ होता है, बट यू कैन डू सिमुलेशन। ये जो सिमुलेशन दिया है वो करके देखिए, फिर एसी एनालिसिस करो। एसी एनालिसिस का एक लिंक मैंने दिया है, वहाँ एसी एनालिसिस का स्टडी करो। अगर वहाँ कोई दिक्कत आता है तो मुझे बता देना। ये एसी एनालिसिस का इक्विवेलेंट सर्किट है। ये भी थोड़ा सा पढ़ो, अगर इसमें कोई दिक्कत है तो वो भी बता देना, विल कवर दैट। फिर सर्किट का जो डिज़ाइन होता है ना, सर्किट डिज़ाइन माने क्या हो, यानी कि होता क्या है सर्किट डिज़ाइन में, ये यहाँ दिया है, ये आप थोड़ा सा पढ़ो। डिज़ाइन डिज़ाइन में करना क्या होता है? इट्स अ काइंड ऑफ पेपर वर्क। डिज़ाइन में पेपर वर्क होता है, तो उसमें डिसाइडिंग द टाइप ऑफ सर्किट टू बी यूज, कौन सा सर्किट यूज़ करना है वो चूज़ करना है, चूजिंग कंपोनेंट्स, कैलकुलेटिंग द कंपोनेंट वैल्यूज़, और बाकी वाला नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन, इतना सब करना पड़ता है डिज़ाइन के प्रोसेस में। ठीक है, तो डिज़ाइन, डेवलपमेंट एंड प्रोटोटाइपिंग, ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। डिज़ाइन यानी कि पेपर वर्क, इसका डिफरेंस मैं अभी लिख रहा था तो लिखा नहीं, लिखूंगा मैं। डिज़ाइन माने पेपर वर्क करना, डेवलपमेंट मीन्स उसका आगे कंसेप्ट डेवलप करना, और प्रोटोटाइपिंग मीन्स एक्चुअली बिल्ड करना। डिज़ाइन माने एक्चुअली कैलकुलेशंस करना, पेपर वर्क। डेवलपमेंट मीन्स उसका सिस्टम लेवल का थोड़ा सोच के कैलकुलेशन के आगे प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस करना, और प्रोटोटाइपिंग मीन्स एक्चुअली सर्किट बिल्ड करना। समझ में आ रहा है? एवरीबडी अंडरस्टूड दिस? डिज़ाइन में और डेवलपमेंट में और प्रोटोटाइपिंग में क्या डिफरेंस है? यस और नो? ओके। और एक बात हमको समझनी है कि स्पेसिफिकेशंस वर्सेस फीचर्स। देयर आर लॉट्स ऑफ प्रोडक्ट्स इन मार्केट, है ना? तो जब हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, जैसे कि हमने टीवी खरीदा, अगर टीवी खरीदा तो उसके साथ एक मैनुअल आता है, उसमें स्पेसिफिकेशंस दिए होते हैं कि ये टीवी कितने इंच का है, हाँ, ये टीवी को कितना वोल्टेज देना चाहिए, इसका पावर कंजम्पशन कितना वाट्स है, वो दिया होता है। सो देयर दे राइट द पैरामीटर एंड उसका वैल्यू, जैसे कि ये टीवी 230 वोल्ट पे चलता है, तो ये हो गया वोल्टेज का रेटिंग और उसका वैल्यू 230। और जैसे कि टीवी 33 इंच का है या 43 इंच का है, सो वेर एवर द वैल्यू इज गिवन, तो उसको बोलते हैं हम स्पेसिफिकेशन। क्या बोलते हैं हम उसको? स्पेसिफिकेशन। कई कबार ऐसा लिखा होता है कि दिस सर्किट हैज़ अ फैसिलिटी ऑफ रिमोट कंट्रोल, तो वहाँ वैल्यू दी नहीं होती है बट उसका फैसिलिटी दिया होता है, तो उसको हम बोलते हैं फीचर्स। ठीक है, तो स्पेसिफिकेशंस और फीचर में डिफरेंस क्या है? स्पेसिफिकेशन में नंबर्स आर शोन, और फीचर्स में डिस्क्रिप्शन दिया होता है फैसिलिटी का, जो भी फैसिलिटी है उसका। आपको समझ में आ रहा है क्या? हाँ, सपोज देर इज़ वन आईसी और उसका ऑपरेटिंग वोल्टेज प्लस माइनस 18 वोल्ट है, तो ये फीचर होगा या स्पेसिफिकेशन होगा? एफ और एस कौन सा है? आईसी है, उसका ऑपरेटिंग वोल्टेज प्लस माइनस 18 वोल्ट दिया है, तो वो तो स्पेसिफिकेशन होगा, है ना? तो ये आप समझ लो, स्पेसिफिकेशन और फीचर के बीच में जो भी डिफरेंस है वो आपको
पता चल गया अभी। तो डिज़ाइन ऑफ प्रैक्टिकल डिफरेंशियल एम्पलीफायर सर्किट जो है ना, तो इसमें क्या किया हमने, ये हो गया आइडियल सर्किट, ये आइडियल सर्किट हो गया। तो आइडियल सर्किट में क्या होता है कि दिस Q1 का एमिटर और ये कॉमन पॉइंट, इसके बीच में कोई रजिस्टर होता नहीं। बिकॉज ऑफ दिस द होल सर्किट डिपेंड्स ऑन द ट्रांजिस्टर पैरामीटर्स। अगर ट्रांजिस्टर पैरामीटर्स कुछ अलग है, चेंज हो गए, तो सर्किट का परफॉर्मेंस अफेक्ट होता है टू ह्यूज अमाउंट। ठीक है, तो ऐसा नहीं चाहिए। रियल लाइफ में क्या चाहिए कि द सर्किट परफॉर्मेंस शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ द कंपोनेंट्स, एक्टिव कंपोनेंट्स। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, फिर हम पॉज लेंगे। ठीक है, एग्जांपल, कैसा एग्जांपल ले लूँ? हाँ, सपोज हमारे पास, डू यू यूज़ रिमोट कंट्रोल? टीवी का रिमोट कंट्रोल यूज़ करते हो ना? यस और नो? हाँ, ठीक है। समझो कि रिमोट कंट्रोल के अंदर कुछ तो सर्किट होता है कि नहीं होता है? यस और नो? हाँ, सर्किट के अंदर सेमीकंडक्टर होता है कि नहीं होता है? सेमीकंडक्टर सर्किट होना ही चाहिए, विदाउट विच इट वुड नॉट वर्क। राइट, नाउ द सेमीकंडक्टर्स विल बी बेसिकली ट्रांजिस्टर्स। ये सब ट्रांजिस्टर से बनते हैं, और उसके अंदर कुछ पैसिव कंपोनेंट्स भी होते हैं, जैसे कि रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, एटसेट्रा। ठीक है, राइट। नाउ इफ यू कंसिडर ट्रांजिस्टर, रेजिस्टर, कैपेसिटर वगैरह वगैरह, तो इसमें पैसिव कंपोनेंट का स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है, और ट्रांजिस्टर जो एक्टिव कंपोनेंट है सेमीकंडक्टर वाला, उसका स्टेबिलिटी कम होता है। यानी कि जब टेम्परेचर चेंज होता है तो ट्रांजिस्टर के पैरामीटर चेंज होते हैं, रेजिस्टर के पैरामीटर इतने चेंज नहीं होते, कैपेसिटर के पैरामीटर इतने चेंज नहीं होते। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? अगर टेम्परेचर बिहेवियर अगर स्टडी करें हम, तो ट्रांजिस्टर में ज़्यादा चेंजेस होते, और रेजिस्टर कैपेसिटर में ज़्यादा चेंजेस होते नहीं। इट मीन्स पैसिव कंपोनेंट्स आर स्टेबल। ये समझ में आ गया आपको? आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो। आप करो इसके बारे में। आर यू गेटिंग द पॉइंट एटलीस्ट? हाँ, तो एक एग्जांपल लेते हैं। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, किसका एग्जांपल ले लूँ? गौरव का एग्जांपल लेता हूँ। तो गौरव एक सेमीकंडक्टर या रिमोट कंट्रोल के कंपनी में है, और गौरव ने वो रिमोट कंट्रोल का डिज़ाइन किया सर्किट। ठीक है, गौरव को ज़्यादा कुछ पता नहीं था, वैसे वो स्टडी कर रहा था, वो ऐसे ही बना दिया उसने। और बाद में पता चला कि जब टेम्परेचर, यानी कि समर के टाइम में वो रिमोट कंट्रोल काम करना बंद कर देता है, और सिर्फ विंटर में काम करता है। ऐसा रिमोट कंट्रोल लोग यूज़ करेंगे क्या? विल दे बाय सच रिमोट कंट्रोल एंड सच टीवी? यस और नो? ऐसा टीवी नहीं लेंगे वो बोलेंगे ऐसा कैसा टीवी, क्या गौरव तुझे इतना पता नहीं क्या, ऐसा रिमोट कंट्रोल किया है आपने सिर्फ समर वाला, ऐसा थोड़ी होता है। तो वो बोलेगा कि नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, वो ट्रांजिस्टर्स रहते हैं ना उसके अंदर, तो वो उसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट ज़्यादा होता है, वो फिर बदलता है। तो लोग बोलेंगे कि आप कुछ भी करो, हमको क्या फ़र्क पड़ता है, वो आप ट्रांजिस्टर यूज़ करो या कुछ करो। साल भर चलने वाला रिमोट कंट्रोल हमको दे दो। तो फिर गौरव सोचने लगता है क्या करे क्या करे क्या करे। तो फिर आता है वो कॉलेज में, उसको बताया जाता है कि अरे भाई ऐसा नहीं करते, ट्रांजिस्टर तो यूज़ करने पड़ेंगे, क्योंकि विदाउट सेमीकंडक्टर आप कुछ नहीं करेंगे, प्रोसेसर नहीं होगा या एम्पलीफिकेशन नहीं होगा, तो सेमीकंडक्टर तो यूज़ करना पड़ेगा, है ना। लेकिन सर्किट का बिहेवियर सर्किट का बिहेवियर ये पैसिव कंपोनेंट पे ज़्यादा डिपेंडेंट होना चाहिए, ना कि एक्टिव कंपोनेंट पे। एक्टिव कंपोनेंट जब हम चेंज करते हैं ना, तो सर्किट का परफॉर्मेंस सेम रहना चाहिए।
इसे और एक एग्जांपल से समझते हैं। तो गौरव ने डिज़ाइन किया और कल्याणी ने उसका सर्किट परचेस कर लिया, और कल्याणी ने एक फैक्ट्री लगा दी रिमोट कंट्रोल की। हेलो कल्याणी, आर यू लिसनिंग? Yes, sir. हाँ हाँ, कैसा लग रहा है? हाउ डू यू फील व्हेन यू इमेजिन दैट यू हैव योर ओन फैक्ट्री? Great. yes 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 when we जैसे कल्याणी, when actually we imagine that we have a factory, तो इतना आनंद होता है। तो जब हमारी खुद की फैक्ट्री हो तो कितना आनंद आएगा, है ना? Yes, sir. हाँ हाँ हाँ। तो फिर हम एग्जाम्पल पे जाएंगे। गौरव का जो सर्किट है ना, वो कल्याणी ने परचेस कर लिया, गौरव को पैसे दे दिए, और कल्याणी ने अपने फैक्ट्री में उसका मास प्रोडक्शन चालू कर दिया। मास प्रोडक्शन यानी कि वो दिन में 1000, 2000, 5000 रिमोट कंट्रोल तैयार कर रही है। तो हर एक सर्किट में अलग अलग कंपोनेंट्स होंगे, यस और नो? कल्याणी एक साथ ऑर्डर करेगी कि हमको कि भाई 10,000 ट्रांजिस्टर दे दो, 5,000 रजिस्टर्स भेज दो, 10,000 कैपेसिटर्स भेज दो, हम सब असेंबली करने वाले हैं। तो हर एक सर्किट में अलग अलग ट्रांजिस्टर होंगे, और उसका बीटा भी थोड़ा थोड़ा अलग होगा, यस और नो? कल्याणी, आपको क्या लगता है, हर एक ट्रांजिस्टर का बीटा एग्जैक्टली सेम होगा? No, sir. हाँ, बीटा बीटा यानी क्या होता है? Gain, sir. गेन, गेन, परफेक्ट। तो हर एक ट्रांजिस्टर का गेन जो है ना, वो ट्रांजिस्टर पे डिपेंडेंट रहता है। उसका अप्रोक्सीमेटली हम बोलते हैं कि उसका गेन 100 है, लेकिन 100 तो होता नहीं वो हर बार, हर एक कंपोनेंट का अलग अलग होता है ना? तो कल्याणी ने असेंबली लाइन चालू कर दी, असेंबली लोग कर रहे हैं, सब असेंबली होके वो बाहर आ रहे हैं रिमोट कंट्रोल, और फिर टेस्टिंग में जा रहे हैं। टेस्टिंग में गए तो समझ में आ रहा है कि आ रहा है ये हर एक रिमोट कंट्रोल अलग काम कर रहा है, क्योंकि उसका बीटा चेंज हो रहा है। तो वो कल्याणी जाती है गौरव के पास, फिर अरे क्या गौरव, कैसा डिज़ाइन किया है तूने, ट्रांजिस्टर थोड़ा चेंज होता है, इधर उधर हो गया तो रिमोट कंट्रोल काम करना बंद करता है, कर देता है, तो ऐसा कैसा बनाया? बोलेगी ना तो कल्याणी गौरव को? हाँ, क्योंकि आपने तो बहुत करोड़ों रुपए का फैक्ट्री लगाया, और ऐसा डिज़ाइन कैसे चलेगा? तो गौरव सोचता है अरे ऐसा हो गया क्या? तो फिर कॉलेज में आता है, और फिर वो सर को पूछ के डिज़ाइन करते था अच्छी तरह से, जिसमें उसका डिज़ाइन अभी ऐसा होता है कि ट्रांजिस्टर चेंज करो, ट्रांजिस्टर चेंज किया तो भी परफॉर्मेंस सेम। वो परफॉर्मेंस ऐसा उसने डिज़ाइन किया कि जो स्टेबल कंपोनेंट्स है ना, जैसे कि रजिस्टर्स, कैपेसिटर, उस पर डिपेंडेंट है। तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में एक रूल हमको ध्यान में रखना चाहिए, हर बार ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा जो डिज़ाइन है ना, हमारा डिज़ाइन, वॉट एवर डिज़ाइन वी डू, दैट शुड डिपेंड लेस ऑन सेमीकंडक्टर डिवाइस। यानी कि स्टेबिलिटी सर्किट की वो रजिस्टर पे डिपेंडेंट ज़्यादा होनी चाहिए, ट्रांजिस्टर पे नहीं। लेकिन जब हम ऐसा सर्किट लेते हैं ना, ये वाला सर्किट, ये वाला सर्किट, इसमें सब वेरिएशन ट्रांजिस्टर डिपेंडेंट है। इसलिए इसमें हम क्या करते हैं कि दो रजिस्टर्स ऐड करते हैं इधर, ये दो रजिस्टर्स आपको थोड़े थोड़े दिखाई दे रहे हैं, R1 एंड R2 दिखाई दे रहा है क्या? हाँ, so because of this two resistors there is a feedback in the circuit, and because of the feedback the gain is dependent on the passive components। ठीक है, तो यहाँ ये सर्किट हम अगर लगाएंगे तो आपको ये ध्यान में आएगा when you do this, इसका जो गेन है ना, ये 10K डिवाइडेड बाय 1K, यानी कि 10 का गेन आपको दिखाई देगा। ठीक है, आप करके देखिए, ये 10K और ये 1K रखो तो आपको गेन मिलेगा 10 का। ये 10K और ये 2K रखो, ये 2K छोटा इधर का R1, तो आपको गेन मिलेगा 5 का। करेक्ट?
तो ये गेन डिपेंड करता है कि रजिस्टर वैल्यू पे, नॉट ट्रांजिस्टर। तो ये अच्छा डिज़ाइन कहलाता है फिर। दैट डिज़ाइन, आई रिपीट, दैट डिज़ाइन which makes the circuit performance depend on passive components is a good design। आप फिर से समझिएगा, जो भी डिज़ाइन है ना, अगर वो डिज़ाइन ऐसा है कि जिसमें सर्किट का परफॉर्मेंस पैसिव कंपोनेंट पे डिपेंडेंट करता है ज़्यादा, तो वो अच्छा डिज़ाइन है। एक्टिव कंपोनेंट जैसे कि ट्रांजिस्टर तो यूज़ करने पड़ेंगे, बट एक्टिव कंपोनेंट अगर चेंज किया हमने तो सर्किट के बिहेवियर पे कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यस और नो? आपको समझ में आ रहा है क्या? ऐसा सर्किट हमको डिज़ाइन करना चाहिए। हाँ, तो उसके लिए ये R1 और R2 डाले हैं, तो इससे सर्किट स्टेबल होता है और उसका जो गेन है ना, वो गेन वी कैन इजीली कंप्यूट। यहाँ एच पैरामीटर वगैरह कुछ करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली आप 10 के ले लो, 1 के ले लो, गेन हमारा 10 होगा, बस। दैट्स ऑल, वेरी सिंपल। और ये 1 के रजिस्टर जो है ना, वो बैलेंसिंग के लिए, बैलेंसिंग, हर एक ट्रांजिस्टर का थोड़ा थोड़ा पैरामीटर अलग होता है, तो बैलेंसिंग के लिए ये किया है। और ये RE1 टू कंट्रोल द एमिटर करंट। तो ये सर्किट आप असेंबली करो। यहाँ एक ट्रांसफार्मर लगाया है। ये ट्रांसफार्मर का पर्पज़ है कि सिग्नल हमको डिफरेंशियल में कन्वर्ट करके दे देगा। सो दैट इज़ द पर्पज़। ये ट्रांसफार्मर का पर्पज़ क्या है? सिग्नल जो सिंगल एंडेड है वो डिफरेंशियल हो, दैट इज़ द पर्पज़ ऑफ अ ट्रांसफार्मर। ठीक है, ठीक है। तो कितना बजा अभी? 5:15 बज गए, बहुत टाइम हो गया। तो आप ये करके देखिए, मैंने लैब मैनुअल में तो लिखा है सब, आप करके देखिए, जितना भी बन सके उतना करिए, और जहाँ आपको दिक्कत होगी तो बताइएगा कि ये सर हमको नहीं आ रहा है, या आ रहा है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है क्यों कर रहा है। देन वी विल हैव अ स्टेप बाय स्टेप डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दैट ऑल्सो। ठीक है, तो इतना कर पाओगे आप? यस और नो? यस सर। तो लैब मैनुअल में बहुत, आई हैव स्पेंट लॉट ऑफ टाइम इन प्रिपेयरिंग दिस लैब मैनुअल। बहुत, यानी बहुत टाइम मैंने दिया है। ठीक है, आई ऑलवेज गो ऑन अपडेटिंग दिस मैनुअल। अभी आज सुबह 5:30 बजे मैंने ये सब असाइनमेंट डाले। सुबह उठ के मुझे लगा कि हाँ, अरे असाइनमेंट डालनी चाहिए, तो मैंने असाइनमेंट ऐसे डाले कि जिससे आपको प्रैक्टिस हो। तो असाइनमेंट पढ़ो और इसी वीक में सब पूरा करो। दिक्कत हो तो जल्दी पूछो, नेक्स्ट वीक में मत पूछना। 2 दिन की छुट्टी है अभी, थर्सडे फ्राइडे छुट्टी है, तो 2 दिन में ज़्यादा काम करो, और कोई दिक्कत हो तो पूछना। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? आप थोड़ा एफर्ट करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यस और नो? ठीक है, तो शैल वी टेक अ पॉज? आज के सेशन में कौन सा पॉइंट ऐसा लगा आपको कि हाँ ठीक है, ये अच्छा था पॉइंट? कैन समबडी टेल दैट? अक्षता, गौरव, रियाज, कल्याणी, मानव, पूर्वा, कैन एनीबडी शेयर कि कौन सा पॉइंट ऐसा था कि जो ठीक ठीक लगा, टेक अवे ऑफ दिस सेशन? तनिष्क, एनीबडी, पीयूष, एनीबडी कैन शेयर? हेलो?
चलो गौरव तो चला गया, एवरीथिंग ओके ओके, फाइन फाइन फाइन। एनीवे, अभी व्हाट आई एडवाइज टू यू इज रीड द मैनुअल, है ना। ये मैनुअल ऐसा बनाया है कि आपको पढ़ने से थोड़ा थोड़ा पता चले, आप जो भी लिखा है वो करते जाइए। और जब भी कोई दिक्कत है तो आप गूगल क्लासरूम पे आप लिखिए कि ये मैंने सर्किट किया लेकिन कुछ नहीं हो नहीं रहा, ठीक है। यू कैन शेयर दैट फाइल ऑल्सो, प्रोटेस का फाइल वहाँ डालो। द होल आइडिया इज टू लर्न, है ना। ये समझ में आ रहा है ना, होल आइडिया इज टू लर्न, लर्निंग का पर्पज़ है ना। तो लर्निंग के लिए एफर्ट्स तो करने पड़ेंगे, ऐसा ऑटोमेटिकली थोड़ी होगा। लर्निंग के लिए एफर्ट्स करना पड़ेगा। अगर आज एफर्ट्स करेंगे तो कल, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर यू विल गेट लॉट ऑफ रिवार्ड्स, उसके रिवॉर्ड्स मिलेंगे। अगर आपको कुछ नया करना है, बड़ा करना है, गूगल में जाना है, इंटेल में जाना है, कॉग्निजेंट में जाना है और अच्छा काम करना है, गूगल में जाके झाड़ू तो नहीं मारना है हमको, है ना। गूगल में जाके भी बड़ा काम करना है उधर, तो उसके लिए अभी से तैयारी तो करनी पड़ेगी। वो ऐसे ही ले लेंगे क्या हमको? ऐसे नहीं लेते वो। नो बडी विल, आपण मराठीत म्हणतो की नाही आपण, की चमत्कार दाखवल्याशिवाय नमस्कार नाही करत लोक आपल्याला, बरोबर ना? मला काय म्हणायचं ते, तर जोपर्यंत आपण काही नाही करत आहे तोपर्यंत कोणी आपल्याला महत्त्व देत नाही, विच इज बट नॅचरल. त्यामुळं आपल्याला एक्स्ट्रा एफर्ट्स केलेच पाहिजेत. वी हॅव टू डू एक्स्ट्रा एफर्ट्स. एक्स्ट्रा एफर्ट म्हणजे खूप काही कष्ट करायला पाहिजे तसं काही नाही. फिजिकल वर्क यू कैन डू फॉर योर बेटर फिजिक. एट द सेम टाइम जो भी ब्रेन से काम है ना वो हमको करना पड़ेगा. अभी इफ़ यू लुक एट द इंडस्ट्रियल सिनारियो, अभी 2 मिनट में हम ब्रेक लेते हैं. इंडस्ट्रियल सिनारियो का हम सोचेंगे तो हमको ऐसा ध्यान में आता है कि इंफॉर्मेशन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं. इट मीन्स इंटरनेट इंफॉर्मेशन से भरा पड़ा हुआ है, यस और नो. लेकिन उस इंफॉर्मेशन का यूज़ करके जो भी कंपनी में आप काम करते हो उसको फ़ायदा करवा देना, ये आपका काम है. अगर आपके कंपनी को फ़ायदा नहीं हो रहा है तो आपको वो निकाल देंगे ना. तो आपके कंपनी को फ़ायदा होना चाहिए. इन्फॉर्मेशन तो सबको है, जैसे कि पाइथन है. पाइथन आप सीख सकते हो तो कोई भी सीख सकता है वैसे, है ना. तो आप क्या नया कर रहे हो? आपको कुछ अलग करना चाहिए, तो उसके लिए फंडामेंटल्स पक्के होने चाहिए, ठीक है. इलेक्ट्रॉनिक्स इज़ अ फैसिनेटिंग एरिया है. तो इसमें क्या होता है कि आप इलेक्ट्रिकल में भी जा सकते हैं, कंट्रोल सिस्टम में भी बाद में काम कर सकते हैं, और कंप्यूटर में भी जा सकते हैं. यू कैन लर्न पाइथन, रिएक्ट, जैंगो, लारावेल, बहुत सारा आप डेटाबेस सीख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो. लेकिन उल्टा नहीं हो सकता. इलेक्ट्रिकल वाले इलेक्ट्रॉनिक्स में ज़्यादा नहीं आते, कंप्यूटर वाले इलेक्ट्रॉनिक्स में ज़्यादा नहीं आते. तो दैट इज़ योर यूनिकनेस. तो आपका यूनिकनेस प्रिजर्व करके, अपना अपना यूनिकनेस प्रिजर्व करके हमको बाकी के फील्ड में भी काम करना चाहिए, ठीक है. आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? हाँ, यस. तो आज क्या करो कि आज आप पढ़ो और थोड़ा काम करो, और कल मुझे डिफ़िकल्टीज शेयर करना गूगल क्लासरूम पे, ठीक है. आई वॉज एक्सपेक्टिंग ऑल स्टूडेंट्स टू बी देयर इन दिस सेशन, बट आई डोंट नो, इट इज़ अप टू देम, ठीक है. तो शैल वी टेक अ पॉज नाउ? ओके ओके, चलो फिर. गुड इवनिंग. आराम से आज का शाम अच्छी तरह से. राइट, हैव अ नाइस गुड इवनिंग, नाइस इवनिंग, वेरी नाइस इवनिंग. तो मज़े करो, अभी थोड़ा देर ब्रेक ले लो फिर स्टडी करो. राइट, सो लेट मी टेक अ पॉज. मुझे भी बहुत भूख लगी अभी बोलते बोलते, तो मैं भी ब्रेक ले लूँगा.
Yes, yes. Thank you to all of you to be with all of us. नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा इंटरेक्शन ज़्यादा चाहिए मुझे, हाँ नेक्स्ट टाइम, हाँ इंटरेक्शन थोड़ा सा बढ़ाएंगे हम, जो भी मन में है ना वो बता देंगे, क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे तो हमको सब सीखना ही है। तो बता देंगे, कुछ भी डिफ़िकल्टी तो पूछ लेंगे और क्लियर करेंगे हमारे हमारे डाउट्स। ठीक है, तो चलो फिर वी विल हैव अ नाइस इवनिंग ऑल ऑफ अस एंड देन बाय।